Okay, today we will start present definite tense. Present indefinite tense tells us about habits, routine actions, and the action that cannot be changed in any circumstances. Like universal truth. Well, okay, we use two different forms in present indefinite tense. One is simple present form or the base form. Another is indefinite form or aorist form. It means that if we are using two different forms in present indefinite tense, it means that we use two different groups of subjects. Okay, simple present form, base form, indefinite form और aorist form. Eat, eats, fly, flies, work, works. Okay. दो फॉर्म यूज़ करने का मकसद क्या है यहाँ पर? दो फॉर्म यूज़ करने का मकसद ये है कि यहाँ पे दो डिफरेंट सब्जेक्ट के ग्रुप यूज़ किए जाते हैं जिनके साथ में ये टू डिफरेंट फॉर्म्स को यूज़ किया जाता है. अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट का वी हैव द फर्स्ट ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट आई, वी, यू, प्लरल नेम्स. प्लरल नेम्स मीन्स चिल्ड्रन, boys, girls, they are plural names. Compound subjects means more than one noun, like Ali and Hafsa, Saad and Fahad, you and I, you and he. They are example of compound subject. The first group of subject with the first group of subject we use base form. With the first group of subject we use base form. You can see that there is no helping verb between subject and the verb. Means here you can see that यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई भी helping verb simple sentence के अंदर use नहीं हो रहा. Subject के फौरन बाद में we use form of verb, that is base form of verb or the present form or the simple present form, and then the remaining part of sentence comes after the verb. Object. EP means extension of predicate, the further information about the object. If I say, I make tea. I make tea, here tea is object. If I say, I make tea in the kitchen, it means that in the kitchen is further information about the tea, and that is extension of predicate. Okay, with this group of subject, and this form, we use helping verb do not in case if we are making negative sentences or questions. Subject, do not, base form, and then object, and then extension predicate. Then do. Okay, if we are making interrogative sentence, we just invert helping verb. Do comes in the beginning, and then the subject, and then base form, and the remaining part of the sentence. If the sentence is negative interrogative, then do plus subject, not, base form, object, extension predicate. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए कि हमें सही तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब को पहचाना. जब हम सब्जेक्ट और वर्ब को सही तरीके से पहचान लेते हैं तो हम बाकी का काम भी बहुत आसानी के साथ में कर पाते हैं. ऐसे किसी भी किस्म का सिंपल सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी यही है. सिंपल सेंटेंस में हमें किसी भी किस्म का कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा. हमें हेल्पिंग वर्ब की कब ज़रूरत पड़ती है? जब हमने सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है. देन वी नीड अ हेल्पिंग वर्ब, दैट इज डू. कि इससे सब्जेक्ट के ग्रुप को आपको अच्छी तरीके से पहचाना और इसके मुताबिक इन सेंटेंसेस को आपको बनाना है. देन वी हैव अनदर ग्रुप ऑफ subject. Second group of subject, what is the second group of subject? He, she, it, singular noun. Singular noun is one name, like Pakistan. Pakistan is one name. India is one name. Saad is one name. Fahad is one name. And nouns, everyone, like everyone, no one, none, each, someone, something, etc. With this group of subject, they all are singular noun or the helping verbs. With this group of subject, we use aorist form. With this group of subject, we use aorist form.
or the indefinite form, and the remaining part comes after the forms object and extension predicate. यहाँ पे भी सेम वही होगा, there is no helping verb between the subject and the verb. सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किसी भी किस्म का कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखें, when we need helping verb just in case if we are making negative sentences or the interrogative sentences, like with this group of subject, with this group of subject, with this form we have a helping verb does, subject does not. Okay, when the first verb has the form of verb which is needed to make the sentence complete. यहाँ पे सेंटेंस का यानी सेंटेंस में फर्स्ट वर्ब के ऊपर जो असर आता है वर्ब का, टेंस का असर होता है, एंड रिमेनिंग another verb will change into base form. जैसे ही हम इसमें does यूज़ करेंगे that forms change into base form. जैसे ही does यूज़ किया base form में ये जो verb था ये बेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि फर्स्ट अगर ES फॉर्म होती है तो सेकंड फॉर्म बेस होती है। दो बेस फॉर्म हम एक साथ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें डू और बेस फॉर्म, ये दोनों बेस फॉर्म है, हम इनको एक साथ में यूज़ कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट यूज़ टू इंडेफिनिट फॉर्म्स और टू एस फॉर्म विद वन अनदर। जैसे ही फर्स्ट वाले पे हमेशा यानी टेंस को अप्लाई किया जाता है और जो सेकंड फॉर्म होती है वो सिंपल हो जाती है इन द थर्ड। और जब हमने इसे नेगेटिव बनाना होता है तो सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, तो फर्स्ट वर्ब हमारा एस फॉर्म के साथ में आया तो सेकंड वर्ब हमारा फॉरन बेस फॉर्म के साथ में हो जाएगा। डज सब्जेक्ट बेस फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन प्रेडिकेट एंड अनदर सेंटेंस यू कैन सी डज सब्जेक्ट नॉट इंट्रोगेटिव नेगेटिव बेस फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन प्रेडिकेट। Well, there are some natural actions that they are complete in meanings, even they do not need subjects too. कुछ एक्शंस हैं जिनको के सब्जेक्ट भी नहीं चाहिए होता है। ऐसे सेंटेंसेस में इट हमारी हेल्प करता है उनका यानी सब्जेक्ट की जगह को जस्ट फिल करने के लिए और विदाउट मीनिंग यूज होने के लिए। लाइक इन दिस सेंटेंस यू कैन सी इट रेन्स। रेन अगर हम इनके मीनिंग्स के ऊपर गौर करें, अब जैसे रेन है बारिश होना, और अगर हम इसी को सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं बारिश होना बारिश होती है, इट मीन्स कि ये सेंटेंस वैसे ही कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये वर्ब कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ब्लोज हवा चलती है, हवा चलना हवा चलती है। स्नोज बर्फ़बारी होना बर्फ़बारी होती है। ये सारे के सारे जो भी वर्ड्स हैं, वर्ड्स जो हैं ये कंप्लीट यानी ये नेचुरल एक्शंस ये कंप्लीट खुद ही मीनिंग दे रहे हैं। इनको किसी और सब्जेक्ट की ऐसा लगता है कि ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें प्रेजेंट यानी ये जो हम प्रेजेंट डेफिनेट की स्टेटमेंट्स हैं तो इनके लिए सब्जेक्ट होना लाजमी है। तो ऐसी कंडीशन में हम इट के साथ इनके सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, तो इट के साथ में कंप्लीट सेंटेंस तो हमारा इट रेन्स एस फॉर्म आएगी, इट के साथ हमेशा एस फॉर्म आती है, एस फॉर्म। इट रेन्स बारिश होती है, इट ब्लोज हवा चलती है, इट स्नोज बर्फबारी होती है, इट ड्रिजल्स बूंदाबांदी होती है, इट हैल्स सालाबारी होती है, इट ब्रीजेस हवा चलती है। अब ये खुद से ही कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट में रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। क्या रिमेनिंग पार्ट आएगा कॉम्प्लीमेंट में? जैसे कराची में, हमारे इलाके में, शाम में, सर्दी के मौसम में, जून में, जुलाई में, तो ये सारे जो पार्ट हैं ये कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। एक्चुअल सेंटेंस हमारा इट रेन्स, इट ब्लोज, इट स्नोज, इट ड्रिजल्स, इट हेल्स, इट ब्रीजेस के साथ में ही बनेगा। अब हमने जो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स को पढ़ा था, इनको किसी पर्पस के तहत पढ़ा था। हमने दो टाइप के फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स पढ़े थे, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स एंड इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स। अब हमारे पास आ जाते हैं यही फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स। अब ये जो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स जो होते हैं ये हमें
डिफरेंट हमारी हैबिट्स को शो करता है, हमारे रूटीन एक्शंस को शो करता है। ये हमें रूटीन एक्शन से रिलेट सेंटेंसेस। और प्रेजेंट डेफिनेट में आप देखेंगे तो इसमें हैबिट्स होती हैं, इसमें आपके रूटीन एक्शंस होते हैं, और आपको यानी अनचेंजेबल एक्शंस को भी प्रेजेंट डेफिनेट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स और डेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स की अपनी प्लेस होती है सेंटेंस में यूज़ करने की। अब हम इनको किस तरीके से यूज़ करेंगे। इनडेफिनेट जो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स होते हैं ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इस्तेमाल होते हैं। इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में बिल्कुल इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। आई ऑलवेज स्पीक टू, ऑलवेज इज इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब एंड इट कम्स बिटवीन आई यानी सब्जेक्ट एंड द वर्ब। ही नेवर टेल्स अ लाई, नेवर कम्स between he and tells, means subject and verb. Often comes between she and goes. She often goes to school late. Indefinite frequency adverbs की प्लेस क्या होती है? Indefinite frequency adverbs की प्लेस होती है सब्जेक्ट और वर्ब के बिल्कुल सेंटर में। और indefinite frequency adverbs हमें how often the action occurs बताते हैं, ठीक है। और ये हमारे रूटीन एक्शंस को मज़ीद यानी डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास डेफिनेट फ्रीक्वेंसी जो एडवर्ब्स हैं उन्हें हम किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब बिल्कुल सेंटेंस के एंड में यूज़ किए जाते हैं, यानी आफ्टर ऑब्जेक्ट या आफ्टर वर्ब जहाँ पे भी वो सूट करेंगे तो हम वहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे उन्हें यूज़ कर देंगे। यानी सब्जेक्ट वर्ब यानी बेस फॉर्म या इनडेफिनेट फॉर्म ये हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, एंड देन डेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब बिल्कुल सेंटेंस के एंड में यूज़ करने हैं हमें, ठीक है। जिससे कैसे और इसके बाद में भी मज़ीद सेंटेंस अमूमन ये एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट का पार्ट होता है, ये एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट का ही अमूमन पार्ट होता है। और अगर ऑब्जेक्ट के बाद में ये वर्ब के बाद में किसी भी जगह पे जहाँ पे ये सूट करेंगे तो हम इन्हें यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें मुस्लिम परफॉर्म नमाज 5 टाइम्स अ डे। 5 टाइम्स अ डे हम बिल्कुल सेंटेंस के यानी ये ऑब्जेक्ट है हमारा नमाज, वर्ब ऑब्जेक्ट और इसके बिल्कुल एंड में ले गए। नंबर 2 पे आप देखें दे गो टू द पिकनिक वंस अ मंथ, दे गो ऑन अ पिकनिक वंस अ मंथ। वंस अ मंथ हम बिल्कुल सेंटेंस के एंड में यूज़ कर रहे हैं। नंबर 3 पे देखें ही स्मोक्स 10 सिगरेट्स डेली, डेली हम सेंटेंस के एंड में यूज़ कर रहे हैं। इन डेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स जो कि हमें कंफर्म नंबर ऑफ एक्शन बताते हैं, हाउ ऑफन द एक्शन अकर्स बताते हैं और एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, तो ये हमेशा हम सेंटेंस के एंड में अमूमन यूज़ कर रहे होते हैं। अब इनसे रिलेट जो भी एक्सरसाइजेस हैं और उसके अलावा ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस है और उसके अलावा डू एज डायरेक्टेड वो आपको साथ में व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा या पोर्टल में अपलोड कर दिया जाएगा। और पोर्टल को देखते रहें, वीडियोस को अच्छे तरीके से कोई सा भी टॉपिक का सोल्यूशन करने से पहले या ट्रांसलेशन करने से पहले, ग्रामर का कोई भी टॉपिक करने से पहले लाजमी है कि आप लोग लाजमी तौर पे कंप्लीट वीडियो को देखें और अच्छी तरीके से समझें। और जो भी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आपकी जो क्लासेस वीकली हो रही होती हैं उसमें आप पूछें। और ये आपको इनकी जो स्टेटमेंट है ट्रांसलेशन जो है वो आप लोगों को दे दी जाएगी और उससे लाजमी सॉल्व करें ताकि पता चल सके कि आप कितना कर पाते हैं। शुक्रिया।